Yes. Namaste, Swamiji, and hello. Namaste. It was a very informative session, and I'm very excited that probably if this is the way to my all my health issues. Now, like I said, I'm 30 kgs overweight. Mostly the weight has increased after uh, childbirth, and then through stressors of life, and then the menopause, which happened early. And now, whatever I try, the weight does not go off. It is like all the types of diets and exercise and stuff. But the doctors have only one reason, that it's your hormonal imbalance. You have to reduce stress in life, and it's all about your mental this thing imbalances and stuff, which is very frustrating at times because uh, you eat less, you are constantly watching what you're eating, and still on the scale you are overweight. So yeah, I mean, I wanted to know, at the age of 49, 50, after crossing menopause, is it still possible to lose that 30 kgs and still be active? Like for the sake of this, I do yoga and I do walking and exercises, and I'm quite flexible. So that is one thing which I'm very happy about. But yeah, weight is my biggest issue. So these are basically anecdotes, huh? Hormonal balance nahi hai, so reduce stress in life. है ना, ये बोल तो देते हैं आपको, बट हाउ टू डू दैट? Yeah, if there was a कैसे किया switch. जाए? हाँ, हाउ टू डू दैट? वो तो कोई बता नहीं, nobody is telling you how to do that. Everybody is saying नहीं नहीं, this is wrong with you, that is wrong with you. Now you are eating too much, eat less. But there are people who are eating a lot and they are not able to put weight. I was more than 105 kgs at some point of time. So if you are reducing weight basically, why the body will gain weight? First of all, you have to understand that. Hmm. There are people who are like structurally like that, but they don't face any issues through that weight. They are from their childhood, their structure is like that. Then most of the people, they gain weight at a certain point of time, especially ladies, when they gain weight after like delivery or after menopause or after a disease episode, thyroid and metabolic disease, any kind of metabolic disease. Now, why, when you face risk in your life, say stress in your life, your body starts gaining weight? Are we saying our body is doing something wrong? क्या हम ये बोलना चाहते हैं? Are we debating on this fact that your body is doing something wrong? Is it a fact, first of all? Your body never does anything wrong. Your body always tries to protect itself, and in the course of protecting itself, it will do whatever it wants, it has to do. उसको जो करना होगा करेगा ना वो. So after a risk episode, even like people who are into depression, you'll see, or anxiety, anxious people, they also start gaining weight. A metabolic disorder, the body starts gaining weight. So what has happened? Some risk has happened and the body is gaining weight. So you should always correlate it as the body is trying to mitigate the risk. You should not say wrong. Mitigation of risk the body is doing is not wrong. So what you have to do is basically increase your tolerance. How can you reduce stress in your life? By not doing anything. नहीं नहीं, बच्चे को स्ट्रेस आता है तो पढ़ना लिखना ही छोड़वा दो ना. You don't do any work because the work culture is not good. अरे बाबा, आपको स्ट्रेस हो रहा है, 10 और लोग हैं जिनको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, सेम सिचुएशन. So it is not the situation which creates stress.
अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है इन अ गुड कोजी एनवायरनमेंट, जस्ट लुक एट पीपल लिविंग ऑन स्ट्रीट्स, लिविंग इन स्ट्रीट्स, what kind of stress they must be facing. Scarcity of food, scarcity of amenities, nowhere to live. अब आप अच्छे सुरक्षित एनवायरनमेंट में है, फिर स्ट्रेस हो रहा है। 10 लोगों, कीप 10 people in the same situation, will everybody get into stress? No. So first of all we have to break this idea, wrong idea, that situation creates stress. No, your tolerance is less, then only stress, you will get stressed. So what is your tolerance level? Can you check it? Can you practically measure it? All those people who are saying stress कम करो, stress बहुत ज़्यादा है, they don't even know what is stress. They can't even define stress. है कि नहीं है? In fact, 80% of total problem that people get into are chronic in nature. Chronic, आपके शरीर के अंदर से आया है, ऐसा है 80% प्रॉब्लम, 20% आर इन्फेक्शन. They can't define even a single problem out of that 80%. डायबिटीज क्यों होती है पता नहीं, क्या होती है, शुगर लेवल बढ़ गया तो डायबिटीज है, तो प्रेग्नेंट लेडी में भी शुगर लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज है. दे आर डिस्क्राइबिंग इट डायबिटीज, इनफैक्ट इट इज नॉट डायबिटीज. आपको कभी इन्फेक्शन होगा तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस होगा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, बट दैट इज नॉट डायबिटीज. योर बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय गिविंग यू एन एक्स्ट्रा बाउट ऑफ एनर्जी. तो हमारी सोच ही बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चला गया. तो टॉलरेंस मेजर कर सकते हैं क्या? व्हाट इज टॉलरेंस? तो क्या वी कैन मेजर इट इन मेनी वेज, इन मेनी वेज. आई विल टेल यू वन वे. एक तरीका मैं आपको बताता हूं. झेलना है ना, टॉलरेंस इज झेलना, हिंदी में कहते हैं झेलना. तो आप क्या झेलते हो? लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स टेक वन एग्जांपल, वेट. आप वेट उठाओ 10 किलो का, यू विल हैव टू टॉलरेट इट ना, आपको झेलना पड़ेगा. तो आप उठाते हैं तो उस समय करते क्या है? फिर लुक इनसाइड, यू से यू होल्ड योर ब्रेथ एंड देन पुल इट अप. अब सांस रोकते हैं, उसके बाद उठाते हैं. अब 20 किलो उठाने हैं तो इफ यू हैव टू लिफ्ट 20 kg, देन व्हाट? योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी हैज टू बी मोर, है ना? तो 10 किलो झेल लिया, आप 20 किलो नहीं उठा रहे हैं. अगर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी ज्यादा होगी तो आप 20 किलो भी झेल जाएंगे. सो what is tolerance? Your breath hold capacity is your tolerance. Are you working on it? स्ट्रेस तो बोल के कि स्ट्रेस बहुत है, सोल्यूशन क्या है? टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा. प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, यू नीड टू वर्क अपॉन इट. आपको उसको बढ़ाना होगा. एंड वी हैव hundreds and thousands of example now. कि कुंभक करना शुरू किया तो वो जो एंजाइटी की गोली लेते थे, इंसोम्निया की गोली लेते थे, डिप्रेशन की गोली लेते थे, छूट गया. Now I feel more energy across the day. I am able to handle situation better. सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं, हमको बताते हैं कि देखो पहले मेरे बच्चे को चोट लग गई, मैं तो घबरा जाती थी. अभी ये कुंभक करने के कारण आई डिड एवरीथिंग विच वॉज रिक्वायर्ड, आई डिडंट गेट स्ट्रेस्ड. इसीलिए आई कुड टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. अब मेरा दिमाग भटकता नहीं है, इट इज मोर इन कंट्रोल. सिचुएशन खराब होने पर भी मैं परेशान नहीं हो रही या हो रहा हूं. थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ना. तो प्रैक्टिकली आपको अगर बोला जाए तभी तो उसका सोल्यूशन मिलता है. आपका ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम है, आप इसे बढ़ा लीजिए, स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा. नाउ हार्मोन इंबैलेंस है. हाउ टू करेक्ट द हार्मोन इंबैलेंस? आज तो इनफर्टिलिटी का वी गॉट अवार्ड ऑफ इनफर्टिलिटी, नेशनल अवार्ड फॉर नेचुरल इनफर्टिलिटी चैंपियंस एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट. AMH काउंट होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन. In females, when they are trying to conceive, this AMH count is critical. Apart from that, males testosterone level हो गया या estrogen progesterone level हो गया. Now females को बताते हैं कि आपका ना AMH काउंट कम है, तो नहीं हो सकता, go for a donor egg.
या फिर आईवीएफ ही करना पड़ेगा, इनिशियली आईवीएफ ही करना पड़ेगा, आईवीएफ फेल फेल फेल, गो फॉर अ डोनर है, यही उनका सोल्यूशन है। देन आई से कि एमएच काउंट कम बोल रहे हैं आपको, आप उनसे पूछो ना एमएच काउंट बढ़ा दीजिए। नहीं नहीं, वो तो नहीं होता, पर हमारे यहाँ तो एक एक महीने में हो जाता है विथ लैब रिपोर्ट एंड नाउ हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स, एमएच काउंट बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं। तो आप बोल रहे हैं हार्मोन लेवल खराब है आपका, उसकी वजह से वेट पुट ऑन हो रहा है, तो ठीक करो ना बॉस। ठीक नहीं करना क्या? नहीं नहीं, ठीक हम नहीं करते, केवल ज्ञान देते हैं। तो एनिकडोट्स है ना ये सब। देयर इज नो सोल्यूशन बट द सोल्यूशन इज हियर, आपके शरीर के पास सोल्यूशन है इसका। योर बॉडी हैज ऑलवेज करेक्टेड योरसेल्फ, प्रिवेंटेड दिस ह्यूमन इटसेल्फ फ्रॉम डिजीज एपिसोड्स, है ना। 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, आपकी दादी नानी देखिए उनकी लाइफ कैसे थी, आपकी लाइफ कैसी। सो बॉडी हैज द केपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अगर वो टॉलरेंस बढ़ जाएगा ना, तो आपके शरीर को फैट जो बेसिकली है, एडिपोज फैट और विसरल फैट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैट इन योर बॉडी। शरीर में 2 तरीके का फैट होता है, एक फैट होता है जो बाहर दिखता है, इसे एडिपोज फैट कहते हैं, और जो अंदर ऑर्गन के अंदर है उसे हम विसरल फैट कहते हैं। पतले लोगों के अंदर भी विसरल फैट ज्यादा होता है, मेटाबॉलिक इश्यूज आते हैं उनको, जैसे नहीं मोटे लोगों को ही फैट ज्यादा होता है। बट इफ यू डू कुंभक, अगर आप कुंभक करना शुरू करें तो क्या होगा, विसरल फैट फर्स्ट व्हाट विल हैपन, विसरल फैट जो अंदर का फैट है ना वो निकलना चालू हो जाएगा। सो योर हार्मोन लेवल भी ना, उसका फ्लो, मेटाबॉलिक फ्लो, ये फ्लो आपके बॉडी के अंदर जैसे जैसे ठीक होगा ना, एंड द टॉलरेंस विल इंक्रीज, यू विल सी योर वेट विल कम डाउन, बिकॉज द बॉडी विल नॉट, हम वेट डायरेक्टली कम नहीं कर रहे, क्योंकि वेट इज प्रोटेक्शन। अगर आप वेट जबरदस्ती कम करेंगे तो आपका ऑर्गन डैमेज होगा, इट विल बी लोड फॉर योर ऑर्गन्स if you use any kind of weight reducing methods like cutting on calories, diet restrictions, fat cutters, अगर ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं तो आपका ऑर्गन खराब होगा, क्योंकि ये बॉडी इज प्रोटेक्टिंग यू थ्रू वेट। वेट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अब देखो, आपके कोई भी हैप्पी हॉर्मोन्स है, स्ट्रेस रिलीविंग हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल कहां से बनता है, कैसे बनेगा, सेरोटोनिन कैसे बनेगा, आपके फैट से बनता है। सो बॉडी इंक्रीजेस फैट, इवन द कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, विच इज गुड। इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इज ऑलवेज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। Now they have taken a U-turn. The whole allopathy has taken a U-turn after saying cholesterol खराब होता है, ट्राइग्लिसराइड खराब होता है. After 50 years they have taken the U-turn कि ये अच्छा होता है. It might not have reached you, मगर वो अपने जर्नल्स में अब ये डालने लग गए. तो फैट कम कर दोगे तो एंटी स्ट्रेस हार्मोन बॉडी कैसे बनाएगा? And then organ damage will happen. So that is not the right approach. Dieting, restricting calories is not a right approach. वो बिल्कुल गलत अप्रोच है. फैट कटर्स, इवन वो तो स्टैटिन्स और भी खराब है. आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, आपको स्टैटिन दे देंगे. अब आपका मेटाबॉलिज्म गॉन ऑन अ टॉस. 25% of new diabetes cases, they are coming not because they were supposed to get into diabetes, because they were taking some kind of reducing weight or fat cutter or statins. 100 में से 25 लोग ऐसे आ रहे हैं जो मेडिसिन के कारण डायबिटिक हुए हैं, और वेरी वेरी स्ट्रेनस मेथड ऑफ कैलोरी रिडक्शन एंड स्ट्रेस. आप जब एक्सरसाइज आपको बोल दिया जाता, आपको तो अच्छा लगेगा नहीं एक्सरसाइज करना. If the body is into risk and has less tolerance, तो आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगेगा. You don't want to move your body, है ना, क्योंकि अंदर रिस्क है, एनर्जी लेवल ही कम है. अब दैट इज अ बिगर लोड ऑन योर बॉडी. आपको बोले नहीं भाई अच्छा IIT कर लो और डू सम काइंड ऑफ एरोबिक्स और इवन योगा. हाँ राइट, आप स्ट्रेच कर रहे हो बॉडी को, बेंड कर रहे हो बॉडी को,
It doesn't feel good. You're not enjoying it. You're doing it because you want to achieve something. राइट अगर आपकी बॉडी में एनर्जी हो उसके बाद में आप एक्टिविटी करते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट विल एम्पावर यू. अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है उसके बाद में एक्टिविटी करते हो तो इट विल मेक यू मोर टायर्ड एंड फटीग, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होगा, इसलिए छोड़ देते हैं फिर. पर इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा ना. सो यू इंप्रूव द टॉलरेंस, इंक्रीज और रिड्यूस द विसरल फैट. एक्सरसाइज बाहर भी करोगे तो विसरल फैट रिड्यूस नहीं होता. बट कुंभक, यू आर यूजिंग प्रेशर टू करेक्ट द होल प्रेशर इकोसिस्टम. दैट्स हाउ योर मेटाबॉलिज्म विल इंप्रूव, दैट्स हाउ योर हार्मोन फंक्शन विल इंप्रूव. और उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो कुंभक कर रहा है उसका वेट इनिशियली हो सकता है कुछ लोगों का बहुत जल्दी से रिड्यूस होता बिकॉज द रिस्क इज लेस. कुछ लोगों का ज्यादा रिस्क है तो टॉलरेंस बढ़ेगा थोड़ा, स्लोली इट विल रिड्यूस एंड देयर विल कम अ टाइम व्हेन इट विल रिड्यूस, ठक एकदम से आपका जो होना चाहिए स्टैंडर्ड वहां तक आ जाएगा. अब मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है, वॉट एवर आई ईट, वॉट एवर, मैं तो पाव भर घी पी जाता हूँ, मेरा वेट अभी बढ़ता नहीं. इट वॉज मोर देन 105 kgs एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. विथ 5'7" इट इज टू मच. 5'7" मेरी हाइट है. तो कुंभक जो करेंगे ना उसके ऑर्गन स्ट्रांग होंगे, रिस्क कम होगा, और उसके बाद में जो आपका मटेरियल मैनेजमेंट है ना बॉडी का, वो ठीक होगा. एंड योर लाइफ फर्दर, आपकी लाइफ में बाकी जो रिस्क है ना वो कम हो जाएंगे, ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे. लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हार्ट अटैक का अटैक है, स्ट्रोक का चांसेस है ना, ये सारा आपका, और सम काइंड ऑफ हार्ट डिसीज कह लीजिए, इवन लाइक पीपल इनटू थायराइड, दे एक्चुअली इंक्रीज वेट एंड वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस. तो थायराइड की कंडीशन ठीक होगी. तो सोल्यूशन आपके बॉडी के पास में है, मगर आप देख कहीं और रहे हैं. यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यूजिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड करेक्टिंग दिस बॉडी. वो गलत तरीका है. बाहर से तो सपोर्ट है, बाहर से सपोर्ट पे कितना जिएंगे. नहीं आपको तो ये प्रॉब्लम हो गया, ये गोली खाते रहो. फैट वाले लोगों को तो मेटफॉर्मिन दे देते हैं खाने के लिए. वो तो अपाइज हो गया ना कोई. अगर आप चल पा रहे हैं उसके बाद में व्हील चेयर पे आते हैं तो आप कहते, आपको बोला जाए व्हील चेयर पे ही रहना पड़ेगा पूरी लाइफ, हो गया काम खत्म. आपको दवाई पे रहना पड़ेगा पूरी लाइफ, हो गया काम खत्म. So you improve the empower your body. Your body has every mechanism to correct itself. इसको हम ठीक करना है, ठीक है ना. ये सही तरीका है. That's how you will empower. You'll see your strength factor, आपके बॉडी का स्ट्रेंथ हो गया, चाहे एनर्जी लेवल्स. वन डे कुंभक, वन डे, फर्स्ट डे you'll see more energy levels throughout the day, है ना. आप बैठे बैठे पसीना आ जाएगा, ऐसे प्रोसेस है. आपको बॉडी हिलाने की भी जरूरत नहीं, बैठे बैठे ही पसीना आ जाएगा. सो एंड यस, दिस इज अ लिटिल is a program where we are teaching you basically there is a body movement also in this, but with breath hold, and there is a part of Karla Katai. Karla Katai आपका बॉडी शेपिंग करता है ना. विथ अ लिटिल वेट यू मूव इट इन अ पर्टिकुलर मैनर, वो भी है इसके अंदर. तो जो लोग अपने बॉडी में स्ट्रेंथ फैक्टर और शेपिंग भी करना चाहते हैं उनके लिए ये और भी अच्छा है. सो राइट अप्रोच ये समझने की कोशिश कीजिए. उसके बाद में, बिकॉज दिस इज योर लाइफ एंड नोबडी इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर रॉन्ग विल हैपन बिकॉज ऑफ एन आइडिया. वी आर ऑलरेडी सफरिंग इट. 100 साल में एक इंसान ठीक नहीं हुआ डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट डिजीज का, और सारा ज्ञान वही देते हैं जो एक को भी ठीक नहीं कर पाए. सारा ज्ञान वही देते हैं. तो मगर आपका बॉडी ठीक कर लेगा. हमारे पास तो अलग अलग प्रोग्राम है ना, उसमें कितने ही लोग निकल आए इन सब प्रॉब्लम से.